গরু পাচার করার সময় বিএসএফ এর গুলিতে গুরুতর আহত হলো এক গরু পাচারকারী। শুক্রবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ধানতলা থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে। বিএসএফ সূত্রে খবর, শুক্রবার ভোর রাতে ধানতলা থানার ধত্তফুলিয়ায় ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে বিএসএফ এর ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের টহল দেওয়ার সময় খেয়াল করে ভারত থেকে বাংলাদেশ গরু পাচারের চেষ্টা করছে দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, বিএসএফ এর জওয়ানরা গরু পাচারকারীদের আটকাতে গেলে গরু পাচারকারীরা বিএসএফ কে লক্ষ্য করে ইট ছুটতে থাকে বোমাও। আর এরপরই বিএসএফ এর তরফে পাচারকারীদের লক্ষ্য করে লাইট ফায়ারিং করা হয়। এই ঘটনায় আহত হয়েছে এক গরু পাচারকারী। উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েকটি গরু। আহত গরু পাচারকারীকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপনি কি করতে গেছিলেন তোমরা? গরু পাচার করতে। কোথায়, কার সাথে, কিভাবে গেছিলে? বাংলাদেশের সাথে গিয়েছিলাম, ওই খয়রাবাড়ি। কিভাবে যোগাযোগ হলো তোমাদের সাথে? ও আমার উপর, আমি তো জোন, আমার উপর আরও যা লোকজন আছে তারা যোগাযোগ করেছে। যোগাযোগ করেছে মানে সেটা কি বাংলাদেশের লোকজন তোমাদের ইন্ডিয়ার সাথে যোগাযোগ করেছে নাকি? হ্যাঁ, করেছে। আচ্ছা, আর তোমার এখানে এই মানে ভারতে যারা আছে গরু পাচারকারী, তারা কারা আছে? 3 জন আরও। কোথাকার বাড়ি তাদের? কোনোটা মনসাটি, কোনোটা কানিয়ানি। কি নাম তাদের? সিরো, রঘু, সাহার। আচ্ছা, এরা কি তোমার নিয়মিত গরু পাচার করে নাকি কালকেই করছিল? না, এরা করে না, ওই কালকে করছিল। কতগুলো গরু নিয়ে গেছিল? 6 পিস। এই যে গায়ে রক্তের দাগ, এটা কেন, কারণটা কি? ওই গুলি লেগেছিল। কারা চালিয়েছে গুলি? বিএসএফ। তোমরা কি করেছিলে? বিএসএফ তো শুধু গুলি চালাতে পারে না, কি করেছিলে তোমরা? না, কি করেছিল বলছিল, ওই গরু যাচ্ছিলাম, বর্ডার করেছে। আচ্ছা, ওই জন্য বোমা কারা মারলে? পেছনে যারা ছিল তারা মিলেছে। এই যে তোমরা দলে কতজন ছিলে তোমরা? আমাদের এখানকার 4 জন, ওখানকার 6 জন। ওখানকার বলতে? বাংলাদেশে। আচ্ছা, কটার সময় তখন যখন হয় ঘটনাটা? 3টের সময়। হ্যাঁ, 3টের সময় রাত ভোর। হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে ওরা কি মানে তুমি বোমের শব্দ শুনেছিলে? এখন আমি তো আগে ছিলাম, শুনতে তো পাচ্ছি তো ওটা। আচ্ছা, শুধু তোমাকে ধরলাম, বাদ বাকি কোথায়? 9 জন কোথায়? তারা পালিয়ে গেছিল। কোন দেশে পালিয়েছে? ওই দেশে, কিছু ওই দেশে পালিয়েছে, কিছু ওই দেশে পালিয়েছে। তারা ধরতে পারেনি? তুমি ছাড়া কেউ আহত আছে? না, আমার চোখে দেখা পর্যন্ত কেউ আহত নেই। কি নাম বলো? सीमा नगर के अंदर हमारी बटालियन डिप्लॉयड है 68, और कृष्णा नगर सेक्टर के अंदर में ये बटालियन आती है। और ये इलाका जहां आप खड़े हुए हैं, ये इक्षामती रिवर का इलाका है। यहाँ पे कल रात में तकरीबन 3 बजे इंडिया और बांग्लादेश के स्मगलर्स मिलकर स्मगलिंग करने का कोशिश किया। आपने इस इलाके में देखा है कि बॉर्डर के रोड तक यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इसीलिए कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऊंचे पेड़ इतने नज़दीक ना लगा जाए। इन पेड़ों के बीच में ही आकर स्मगलर पार्टी जो है वो छुप जाती है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर में स्मगलर्स को क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही है फेंसिंग होने की वजह से, तो जो भी ओपन गैप है बड़ी टैक्टिक्स के साथ ये स्मगलर पार्टी स्मगलिंग कर रही है। इनके अंदर में एक पार्टी आती है जो कि पहले से पत्थर वगैरह इस्तेमाल करती है। आपने देखा होगा झोले आपको दिखाई दिए हैं जिसमें पत्थर ये बटोर के लेके आते हैं। इस पार्टी का काम होता है कि जो हमारे एसीपी के ऊपर सिर्फ 2 ही लोग होते हैं ड्यूटी करने वाले, जैसा कि इस ब्रिज के ऊपर भी कल रात में 2 लोग थे। सबसे पहले इस पार्टी को पहली बात तो धोखा देकर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर निकलने की कोशिश की जाती है। अगर ये पार्टी नोट कर लेती है तो इमीडिएटली इसके ऊपर पथराव किया जाता है। लेकिन कल ताज्जुब की बात है कि पथराव के साथ साथ इस पार्टी के ऊपर पे कंट्री मेड बम भी फेंके गए। कंट्री मेड बम के अलावा इन्होंने इसके अंदर में मिक्स किए दिवाली वाले क्रैकर्स भी। तो तकरीबन 13 फटे यहाँ पर आकर, और आपने ब्रिज के ऊपर पे देखा होगा पूरे पे पत्थर बिखरे हुए हैं, जिसमें हमारा एक लड़का भी थोड़ा इंजर्ड हुआ है, बिजोई नाम का, जिसके हाथ में पत्थर लगा है। और इस पार्टी ने ब्रिज के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश की, जहाँ से ये खतरा हो जाता है हमारे लड़कों को कि इंजरी है, क्योंकि ये जो कंप्लीट गोरू पार्टी थी ये हमारे एसीपी पार्टी के बीच में फंस गई थी। तो इनको पता था कि हम नीचे जाके उनको रोकेंगे। तो उसी में जो अपने आप को बचाने के लिए हमारे लड़कों को फायर करना पड़ा, जिसमें कि पीएजी एक वेपन हमें दिया गया है नॉन लीथल, जिससे कि किसी की जान ना जाए, लोगों को डर है। तो शायद स्मगलर पार्टी को पता है कि इससे कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, इसलिए ये इतनी हिम्मत कर लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब देखा गया है तो ऐसे समय पे गाली देकर वो बोलते हैं पटाखे फोड़ते रहो, कुछ नहीं होता। तो उसकी एक इंडिविजुअल को इंजरी हुई है। ये लड़का दत्ता पुलिया का है, इंडिया साइड से। अब रात में ये इधर से तो बांग्लादेश भाग गए,
सारे के सारे तकरीबन 10 से 15 लोग थे और हमारी उम्मीद है कि 10 से 12 गोरू थे पीछे जिनको ये ले जाना चाह रहे थे। उसके बाद में जो ये लड़का अंदर बांग्लादेश साइड में चला गया है, वापस बांग्लादेशी स्मगलर्स ने इसको खींच के ले गए हैं बांग्लादेश के अंदर में। और हमारी एक और 8 बटालियन एरिया है जहाँ पर फेंस नहीं है, उस जगह पे लाके इसको छोड़ दिया और बोला तुम अभी बांग्लादेश इंडिया साइड चले जाओ, तुम इंडियन हो। क्योंकि इनको पता है हमारा बीजेपी के साथ बहुत अच्छा संबंध है, जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है हम त्वरित बीजेपी को इन्फॉर्म करते हैं और बीजेपी भी जो है एक्शन में आ जाती है। तो इनको हमारी ये एक्शंस पता है। तो ये अंदर आते हुए सुबेरे हमारे ओपी ने देखा, तो उस लड़के को भी हमने जब उसे पकड़ा तो उससे हमें सारी कहानी पता लगी कि